Hello everyone, so the question is let fx is equals to e raised to the power x minus x and gx is equals to x square minus x for all x belongs to R. Then the set of all x belongs to R when the function hx is equals to f of g of x is increasing is, so we are having four options. We have to calculate the answer and then take which of the following option is the correct option. So we are given that hx is equals to f of g of x. It means that f of g of x, correct? Now I am given the value of fx is equals to e raised to the power x minus x, and we are given with the value of gx is equals to x square minus x. Now let it be equation number 1. So I'm differentiating equation number 1. So I get h dash x is equals to f dash of g of x into g dash x. Now proceeding forward, what is the value of f dash x? So f dash x is, it will be equals to f dash of gx, that would be e raised to the power gx minus 1 into what is the, into g dash x. Now I'll be substituting the values, so that will be equal to e raised to the power x square minus x minus 1 into g dash x. So what is the value of g dash x? From here I can get g dash of x is equals to 2x minus 1. So that is 2x minus 1. This is what we get the value of h dash of x. Now there'll be two cases. Okay, this would be greater than equal to 0 because we need to find, it is mentioned that increasing function. So there'll be two cases. First case, when e raised to the power x square minus x minus 1 is greater than equal to 1 and, okay, not greater than equal to 1. If this is greater than equal to 0, then I can write this function as greater than equal to 1 and 2x minus 1 is greater than equal to 0. So from these two equations, I get that x will belong to 1 and up to infinity. Okay, there'll be open bracket here. And what would the case 2? So case 2 would be e raised to the power x square minus x is less than equal to 1 and 2x minus 1 is less than equal to 0. So solving it, I get the value of x. X belongs to 1 by, okay, x belongs to 0 to 1 by 2. So from both the equations, I get what is the final x belongs to. So this final x belongs to 0 to 1 by 2 union 1 to infinity. So this is the correct answer. Let's see which of the option is the correct answer. So it is 0 to 1 by 2 union 1 to infinity. So it means that option C is the correct option. I hope this explanation is clear to you all. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट, सो हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स जिसका डोमेन है 0 to 2, 0 2 पर है क्लोज इंटरवल एंड कोडोमेन है उसका आर, बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 इफ फाई ऑफ एक्स इक्वल टू f of x plus f of 2 minus x then phi is. सो देखिए हमें phi of x इक्वल टू दिया है f of x plus f of 2 minus x. नाउ यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करूं तो देखिए ये हो जाएगा phi dash x इक्वल टू f dash x. f ऑफ 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस एक्स का हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस, तो 5 डैश एक्स इक्वल टू हो गया f डैश एक्स माइनस f डैश 2 माइनस एक्स. नाउ क्वेश्चन में हमें दिया है f डबल डैश x ग्रेटर देन 0. इसका मतलब जो f डैश x होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा.
तो एफ डेक्स एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ देखिए फाइव ऑफ एक्स के इंक्रीजिंग के लिए, सो फॉर इंक्रीजिंग ऑफ फंक्शन फाइव डेक्स एक्स जो होना चाहिए, फाइव डेक्स एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नाउ फाइव डेक्स एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो फाइव डेक्स एक्स क्या है हमारा, एफ डेक्स एक्स माइनस एफ डेक्स 2 माइनस एक्स, तो एफ डेक्स एक्स माइनस एफ डेक्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी एफ डेक्स एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए एफ डेक्स 2 माइनस एक्स। नाउ एफ डेक्स एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारा x ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, क्योंकि f ऑफ एफ डेस एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 2, यानी x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सो इंटरवल 1 से 2 में जो होगा वो 5 ऑफ x जो होगा फंक्शन हमारा वो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नाउ अब हम 5 के डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। सो फॉर डिक्रीजिंग ऑफ 5, तो उसके लिए 5 डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। 5 डैश एक्स था हमारा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स, वो लेस देन 0 होना चाहिए। देन एफ डैश एक्स लेस देन हो जाएगा एफ डैश 2 माइनस एक्स। नाउ एफ डैश एक्स, एफ डैश क्या है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ से ये हो जाएगा x लेस देन 2 माइनस एक्स, यानी 2x लेस देन 2, यानी x लेस देन हो जाएगा 1, यानी कि इंटरवल 0 to 1 में हमारा 5 जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ना ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1 एंड डिक्रीजिंग ऑन 1 to 2, अपोजिट आंसर है। बी ऑप्शन दिया है डिक्रीजिंग ऑन 0 to 2, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है डिक्रीजिंग ऑन 0 to 1 एंड इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, तो ये क्या है, राइट आंसर है। डी ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑन 0 to, ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। So this is the solution of this question. Okay. Hello students. So the question is let f of x equal to x divided by square root of a square plus x square minus d minus x divided by square root of b square plus d minus x का whole square for all x belongs to R, where a, b and d are non-zero real constants, then which option is correct? So देखिए हमें f of x इक्वल टू दिया है x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 माइनस d माइनस एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द होल पावर -1/2। नाउ यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन देखिए ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू यू इंटू वी वाला मेथड लगेगा। सो सबसे पहले एक्स का करते हैं, तो एक्स का तो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। नाउ अब x को तो कांस्टेंट रखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। सबसे पहले पावर का करते हैं, तो इसका आ जाएगा -1/2, x कांस्टेंट है, देन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हो जाएगा -1/2 -1 -3/2। एंड नाउ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का करते हैं, तो ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो इंटू 2x माइनस
नाउ अब हम d माइनस एक्स का करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं, देन ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द होल पावर -1/2 एंड डी माइनस एक्स का क्या होगा, डी का तो हो जाएगा 0, माइनस एक्स का -1, तो ये +1 हो जाएगा इंटू 1 एंड नाउ डी माइनस एक्स को कांस्टेंट रखते हैं और इसका करते हैं, देन यह माइनस डी माइनस एक्स, देन देखिए सबसे पहले पावर का करते हैं, तो पावर का आ जाएगा -1/2 बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द होल पावर -1/2 -1 -3/2 एंड नाउ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर का करते हैं, तो बी स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर का करते हैं तो इसका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी माइनस एक्स। नाउ डी माइनस एक्स का करते हैं तो इसका हो जाएगा -1, देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको आगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 था, तो यह +3/2 हो जाएगा, प्लस 1/बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द होल पावर 1/2 एंड यहाँ देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, तो डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, देखिए यहाँ एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, देन यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरह से यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। नाउ यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देन आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको आगे, तो यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर से माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। नाउ अब देखिए ए स्क्वायर क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसकी पावर 3/2 ये पॉजिटिव होगा, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ बी स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव है, तो ये होल वाले भी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, सो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स से तो इंडिपेंडेंट है, एक्स हमारा कुछ भी हो। सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखिए ए ऑप्शन दिया एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, बी ऑप्शन दिया एफ डैश इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन, सी ऑप्शन दिया एफ इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, डी ऑप्शन दिया एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए correct answer. So this is the solution of this question. Okay.
क्वेश्चन में बोल रहा है लेट द फंक्शन जी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंड को डोमेन है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, गिवन बाय जी ऑफ यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ ई रेज टू पर यू माइनस पाई बाय टू। सो फंक्शन क्या है, जी ऑफ यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ ई रेज टू पर यू माइनस पाई बाय टू, राइट। अगर मैं जी ऑफ माइनस यू देखूं तो जी ऑफ माइनस यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस यू माइनस पाई बाय टू, राइट। अब मेरे को पता है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर माइनस यू को लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई रेज टू पावर यू, राइट। तो जी ऑफ माइनस यू क्या हो जाएगा, जी ऑफ माइनस यू हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1 बाय ई रेज टू पावर यू, राइट, 1 बाय ई रेज टू पावर यू माइनस पाई बाय टू। ओके, अब ई रेज टू पर यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो 1 बाय ई रेज टू पर यू भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो 1 बाय ई रेज टू पर यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और यहां से मेरे को tan की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x प्रोवाइडेड x जो है वो पॉजिटिव हो। तो ऑब्वियसली 1 बाय ई रेज टू पर यू पॉजिटिव है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि g ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स cot इनवर्स ऑफ ई रेज टू पर यू माइनस पाई बाय टू। एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय टू फॉर ऑल x। तो यहां से क्या आ जाएगा, g ऑफ माइनस u इज इक्वल टू 2 टाइम्स cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स x, तो पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स ऑफ ई रेज टू पर यू माइनस पाई बाय टू विच इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ ई रेज टू पर यू माइनस पाई बाय टू। ये मेरे पास क्या आ गया, जी ऑफ माइनस यू आ गया विच इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय टू कितना हो जाएगा, वो तो पाई बाय टू हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ ई रेज टू पर यू, ये जी ऑफ माइनस यू है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ ई रेज टू पर यू। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस साइन कॉमन लेने के बाद, ये तो जी ऑफ यू है, राइट। जी ऑफ यू मेरे पास क्या था, जी ऑफ यू था 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ ई रेज टू यू माइनस पाई बाय टू, राइट। तो ये तो जी ऑफ यू लिखा हुआ है, तो जी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जी ऑफ यू। और ये किस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ऑड फंक्शन की, तो जी ऑफ यू इज एन ऑड फंक्शन। ओके, ये मेरे को मिल गया। अब मेरे को क्या पता है कि जो ई रेज टू पर यू होगा, ई रेज टू पावर यू, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ई रेज टू पर यू इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ई रेज टू पावर u1 will be greater than e raised to power u2 for all u1 greater than u2, right? e raised to power u is an increasing function, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि e raised to power u1 is greater than e raised to power u2 for all u1 greater than u2। और मैं क्या बोल सकता हूं कि जो tan इनवर्स का ग्राफ होता है वो भी इंक्रीजिंग होता है, राइट, tan इनवर्स एंड, और मेरे को क्या पता है कि tan इनवर्स x also is an increasing function, right, is an increasing function। tan इनवर्स क्या है, एक increasing function है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, tan इनवर्स x1 will be greater than tan इनवर्स x2 for all x1 greater than x2, right। अब अगर मैं x1 को पुट कर दूं e raised to u1 और x2 को पुट कर दूं e raised to power u2, तो मैं क्या बोल सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ e raised to power u1 will be greater than tan इनवर्स ऑफ e raised to power u2 for all e raised to power u1 greater than e raised to power u2।
राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर u1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर u2 फॉर ऑल। देखो e रेज़ टू पावर u1 ग्रेटर देन e रेज़ टू पावर u2 कब होगा, जब u1 ग्रेटर देन u2 हो। फॉर ऑल u1 ग्रेटर देन u2, राइट। बिकॉज अगर u1 ग्रेटर देन u2 है तो e रेज़ टू पावर u1 ग्रेटर देन e रेज़ टू पावर u2 हो जाएगा, और अगर e रेज़ टू पावर u1 ग्रेटर देन e रेज़ टू पावर u2 है तो tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू u1 ग्रेटर होगा tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू u2 के, राइट। अब अगर मैं दोनों तरफ इनइक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर u1 will be greater than 2 times tan inverse of e raised to power u2, right, for all u1 greater than u2। दोनों तरफ पाई बाय 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इनइक्वालिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ e raised to power u1 minus पाई बाय 2 will be greater than 2 times tan इनवर्स ऑफ e raised to power u2 minus pi by 2 for all u1 greater than u2, right, u1 greater than u2। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो g of u1 लिखा हुआ है, राइट। सो g of u1 is greater than, ये g of u2 लिखा हुआ है, g of u2 for all u1 greater than u2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये कौन से फंक्शन की प्रॉपर्टी है, इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो दिस इंप्लाइज g of u is an increasing function for every u1 greater than u2, right, every u1 greater than u2 जो उसकी डोमेन में लाई कर रहा था। g of u is an increasing function for every u belonging to minus infinity to infinity, right, क्योंकि g of u1 greater than g of u2 है, चाहे हम u1 और u2 की कोई भी वैल्यू ले लें, तो जितनी भी डोमेन है उस पूरी डोमेन में जो मेरा फंक्शन है g of u वो इंक्रीजिंग होगा। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि g of माइनस u जो है वो माइनस टाइम्स g of u के कलर, मतलब जो ऑड फंक्शन है, ऑल्सो फंक्शन इंक्रीजिंग भी है। तो देखो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ए में तो इवन बोल रहा है, बी में बोल रहा है नाइदर इवन नॉर ऑड, तो ये भी नहीं है। बी और सी में क्या बोल रहा है, ऑड एंड इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं है बल्कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू। ओके, तो क्वेश्चन में मेरे पास f(x) ये गिवन है, ठीक है, और उस पर ये कंडीशन गिवन है। तो मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, या f(x) हैज ए लोकल मैक्सिमा, या f(x) इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, या f(x) इज बाउंडेड। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि बाउंडेड वाले ऑप्शन को हटाते हैं। कैसे, अगर आप f व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो f ऑफ x ये भी इन्फिनिटी टेंड करेगा क्योंकि x क्यूब है, तो x स्क्वायर और x सभी इन्फिनिटी टेंड करते हैं। और जब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो f ऑफ x जो है ये टेंड करता है माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्यूबिक है और माइनस इन्फिनिटी का क्यूब जो है वो माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा। ओके, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप ये होता है डिक्रीजिंग या लोकल मैक्सिमा, ये सब फाइंड करने के लिए हम लोग जो है f' चेक करते हैं। तो ये है मेरा 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, 0 है क्या है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके रूट्स हैं या नहीं है। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो होता है, वो होगा 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c इंटू 3। ओके, तो दिस ये हो जाता है 4b स्क्वायर माइनस ये हो गया 4b, सॉरी ये है 12c। ओके ओके, तो अब 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये है b स्क्वायर माइनस 3c। ओके, तो अब जो है ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस 3c। तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि 0 से b स्क्वायर बड़ा है और ये c से छोटा है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 4b स्क्वायर माइनस c माइनस 8c। ओके, तो ये नंबर जो है b स्क्वायर माइनस, अब 0
अगर ये वाला इक्वेशन देखें तो मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर लेस देन सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, और मुझे पता है कि सी ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस सी लेस देन जीरो, तो ये होल टर्म जो है मेरी फोर बी स्क्वायर माइनस सी, ये वाला पार्ट भी जो है ये नेगेटिव है, और ये माइनस एट सी ये भी नेगेटिव है, तो मैं कह सकता हूँ कि फोर बी स्क्वायर माइनस सी माइनस एट सी दिस इज लेस देन जीरो। ओके, तो जो है ये लेस देन जीरो है, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, यानी कि एफ डैश एक्स के जो हैं रियल रूट्स नहीं है, तो एफ डैश एक्स के रूट्स नहीं है, तो एफ डैश एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि उसके रूट्स नहीं है। ओके, एक्स जो है इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, यानी कि एफ डैश एक्स वाला जो कर्व होगा वो ऐसा कुछ कर्व है एफ डैश एक्स का, तो विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो अब अगर एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ये हमें क्योंकि एफ डैश एक्स जो है इज ग्रेटर देन जीरो, सो कौन सा ऑप्शन सही है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके,